Hello. Hi, welcome students. Welcome to the lecture number 15. In the last lectures, we have started with graphs. I hope so. In the last class, what we have done, you have understood it well. So we will revise for some time what we have done in last class. In last class, we have used two main concepts. First is slope of xt graph will give velocity, and second concept is area under vt graph will give displacement as well as distance. Today we will solve one more question on that particular case, and further we will take accelerated motion. Uniform accelerated motion means right now, till now, we are taking acceleration as 0 in graphs questions, and in today's class we will discuss four simple cases of acceleration in this class, and how to draw xt, vt and at graph of accelerated motion, of uniform accelerated motion. So students, if you have the knowledge of graphs, then question solving will become easy in some questions. So if you are first time, it is very difficult for a student coming to +1 class to understand these graphs, but इतने भी मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट्स नए हैं, बट बेटा अगर आपके ग्राफ्स एक बार स्ट्रांग हो गए तो आपका पूरा मेडिकल और नॉन मेडिकल विल बी स्ट्रांग। आपको ग्राफ्स अगर देखने आ गए, ग्राफ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आ गई और आप एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को बना पाते हो, तो यानी कि यू हैव डन अ वंडरफुल टास्क, राइट? So students, don't worry, right? If anybody is facing any doubt, call me on that number, right? So today we are going to start with this question, right? Everybody write down this question. In this question we are given with a graph of vt graph, and we have to find till 10 seconds. Time is in seconds and velocity is in meter per second. So you have to find the displacement of the body in 10 seconds and distance covered by the body in 10 seconds. Everybody of you can pause the video and solve the question, and once you solve the question, then you come back over here and see how we are going to solve this question, right? तो सबसे पहले बेटा we have to find the distance and displacement using VT graph, and we know that area under VT graph will give us distance as well as displacement. How? First of all, we will find the area, this area, this dotted area, और इस dotted area को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, that is this area is A1, और A1 की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आएगी? The value of A1 will be equals to, I can see over here, this A1 area, this complete area, green dotted area is made up of two parts. One is this right angle triangle and one this is rectangle. तो सबसे पहले बेटा area of this triangle will be equal, so I know it is equals to half of base into height. Base is 4 into height is 5. 5 is the height. Area of triangle आ गया, plus area of this rectangle 6 minus 4, that is 2, multiplied by height is 5, and 2 multiplied by 5, that is 10. तो यहाँ से बेटा अगर मैं A1 की वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, दिस विल बी 10 plus 10, so I will get A1 is equals to plus 20 meters. तो A1 की वैल्यू बेटा 20 meters आ गई है. Similarly, now I will find the value of A2. तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर, या आप दो राइट एंगल ट्राइंगल्स ले लो, या मैं एक ही ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ पर. तो यहाँ पर आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है,
ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, दैट विल बी आई से इट्स एरिया इज A2, और A2 की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होगी, दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस की वैल्यू कितनी है, ये 6 है और ये 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, हाफ ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट इज 4, तो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अच्छा ये नेगेटिव के अंदर हाइट है, तो मैं इस एरिया को A2 को क्या लिख देता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ, एरिया में से नेगेटिव नहीं होता बट यहाँ पर क्योंकि ये एक्स एक्सिस से जो अपवर्ड होगा उसको हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और जो बिलो होगा उसको हम नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से बेटा हमारे पास A2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, दैट इज -8 मीटर्स, राइट। तो आपके पास A1 और A2 आ गया। तो अब बेटा इफ यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज A1 प्लस A2 सिंपली, ठीक है। आप इसको अकॉर्डिंग टू साइन कर लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन लोगे और बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए इट विल बी मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू, आई हैव सेड A1 प्लस A2। तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज 20 और A2 की वैल्यू कितनी है, प्लस ब्रैकेट में पुट कर देते हैं, A2 की वैल्यू कितनी है -8। तो यहाँ से बेटा अगर आई विल सॉल्व इट, आई विल गेट इट इक्वल्स टू 20 - 8 दैट इज 12 मीटर्स। तो मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव 12 मीटर्स। एंड सिमिलरली बेटा इफ आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये भी 10 सेकेंड्स में निकाला है और ये भी अभी हम 10 सेकेंड्स में निकाल रहे हैं। तो आई नो दैट इट इज मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 which will be equals to mod of 20 plus mod of A2 की वैल्यू कितनी है, -8। Now everybody knows that mod of 20 is already positive, तो ये पॉजिटिव भी आएगा, प्लस mod of -8 किसके इक्वल होगा, that will be equals to 8। तो मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे हमारे पास +8 का मॉड है, इट इज इक्वल्स टू 8 क्योंकि ये पहली प्लस है, और अगर -8 का भी मॉड करूंगा वो भी कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि मॉड के बाद हमारे पास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही बाहर आती है। तो यहाँ से बेटा अगर मैं सॉल्व करूंगा, इट विल दिस कम्स आउट टू बी 28 मीटर्स आंसर। So this is the distance traveled in 10 seconds and this is the displacement traveled in the 10 seconds. I hope so सभी बच्चों को ये बात पता चली होगी that how to find out the distance and displacement from a given VT graph। तो VT ग्राफ से हमारे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है ये अभी हमने सीखा, राइट। अब आपको बेटा क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, वेदर इट इज आस्किंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर्टिकुलर मेथड को लगा के आप वहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ यू हैव नोटेड डाउन, नाउ वी विल मूव ऑन फर्दर। हाँ जी बेटा, now we will start with the simple questions of accelerated motion, right? Let's say we are having a body initially standing at position 0, body is standing over here, right? It is standing over here. It is having initial position 0, initial position equals to 0 meters। तो सारा कुछ मैं ऐसे यूनिट्स के अंदर ही लूंगा। एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 meters per second square। Acceleration is equals to 2 meters per second square, and this all thing is at t equals to 0 seconds। तो t equals to 0 seconds पर ये हमारे पास क्वांटिटीज हैं।
तो अब बेटा अगर मेरे को किसी भी टाइम पर, देखो अब मैं सबसे पहले बात रिपीट कर रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, राइट। तो अब मेरे पास जो एक्सेलरेशन गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो पॉजिटिव है। क्योंकि एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव है, देन दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन because its initial speed is 0, it is tending and it is having a positive acceleration, then it will start moving in the positive x direction, and with the time its velocity will increase at a rate of 2 meters per second square. हर सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी 2 से, और किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी दैट विल बी द गिवन बाय द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अब बेटा अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को लिखता हूं, इफ आई विल राइट द वेलोसिटी इक्वेशन दैट इज v is equals to u plus at। if I want to find out the velocity at any time, that is v at any time t, u की वैल्यू किसके इक्वल है, it is equals to 0, so that's why a की वैल्यू किसके इक्वल है 2, so that is 2 into t। So you can very clearly see over here, if I want to find the velocity at t equals to 1 second, it will be equals to 2 meters per second, and similarly v at t equals to 2 seconds पर अगर मैं निकालूंगा it will be 4 meters per second। Similarly velocity अगर मैं 3 seconds पर निकालूंगा it will be equals to 6 meters per second। I will put over here 3 to the 6 meters per second, and similarly so on I can find out the velocity at any time using this particular equation। So I can very clearly see over here that my equation of Vt graph is this one। This is the equation of Vt graph। तो जो मेरा Vt ग्राफ बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो बेटा मेरे पास कितनी है +2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही ले रही है, आई एम टेकिंग एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट। तो मेरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, आई विल से सर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मींस कि ये टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रही, बट टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी वेरी कर रही है, और वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, दैट इज v इक्वल्स टू 2t मीटर्स पर सेकंड, 2t meters per second, or according to this I have got this some points of Vt, and once I have got the points of Vt, now I will write the points of displacement of the body, and if I want to find out the displacement of the body, I know acceleration is constant, so I can apply the equation of motion, that is s is equals to ut plus half a t square। So over here, if I put the values of over here, so I will get s is equals to s, यहाँ पर क्या है, this is displacement, s is displacement, u is 0 plus half of 2 into t square। तो over here 2 will be cancelled out with t, तो s की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ जाएगी, it will comes equals to t square। तो s is equals to t square is the equation of meters, t square meters, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ xt ग्राफ। अगर बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट कर लेता हूं तो इसको मैं x लिख देता हूं, अगर मैं s से डिनोट कर लेता हूं तो उसको मैं s लिख देता हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी पर्टिकुलर चीज से उस पर्टिकुलर चीज को डोनेट कर, राइट, आई एम डिनोटिंग डिस्प्लेसमेंट एज x। तो अब अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, दैट इज x निकालना है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर निकालना है। अच्छा 0 सेकंड पर उसका पोजीशन कितना है, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ 0, यू विल गेट 0 मीटर्स। यू कैन वेरी क्लियरली सी इट इज इनिशियली एक्सटेंडिंग एट 0, तो इसीलिए बेटा इसका पोजीशन भी 0 आया, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर मेरे को t 1 सेकंड्स में देखना वो कितना आगे होगा, तो आई विल क्लियरली पुट इट ओवर हियर 1, तो आई विल गेट 1 मीटर।
Similarly अगर बेटा मेरे को 2 seconds पर चाहिए, I will put 2, I will get 4 meter. Similarly 3 seconds पर अगर चाहिए, I will put 3, I will get 9 meter. Similarly 4 seconds पर अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो it will be 16 meter. And similarly 5 seconds पर निकालनी है, it will be 25 meters and so on. तो यानी मैं किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं और पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकता हूं यूजिंग दीज इक्वेशंस. तो बेटा आप सभी ने एक बात को याद रखना है कि यहां पर ये जो इक्वेशंस आई हैं v = 2t x = t², ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे आई है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको कैलकुलस मेथड करवाऊंगा तो उसमें ये आपको चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. तो ध्यान से देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ vt एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ xt². सो नाउ आई विल ड्रॉ द ग्राफ्स. सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं AT ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है सेकंड्स के अंदर, सब कुछ मैं ऐसा यूनिट्स के अंदर ही ले रहा हूं. और यहां पर अगर क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, यहां पर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी 1 2 3 4 सो ऑन, और नीचे को -1 -2 -3 सो ऑन. दिस इज टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड. तो अब बेटा इफ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ दैट इज a = 2 meters per second square, तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, आपको इक्वेशन आपने की होगी ना 10th क्लास के अंदर, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ x = 1 x = 2 या y = 2. यहां पर हमारे पास y एक्सिस के अंदर a पड़ा हुआ है और x एक्सिस के अंदर t पड़ा हुआ है, और आपको a = 2 की लाइन लगानी है. और अगर बेटा आपको a = 2 की लाइन लगानी है, a = 2 की लाइन किसके इक्वल होगी, दैट इज दिस. तो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट सर 0 सेकंड्स पर भी उसकी एक्सेलरेशन 2 है, 1 सेकंड्स पर भी उसकी एक्सेलरेशन 2 है, 2 सेकंड्स पर भी उसकी एक्सेलरेशन 2 है, और 3 सेकंड्स पर भी उसकी एक्सेलरेशन 2 है. तो इनकी इसकी एक्सेलरेशन क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है. सो दिस इज योर AT ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी. आई थिंक सो एवरीबॉडी इज क्लियर टिल ओवर हियर. नाउ आई विल ड्रॉ इट्स VT ग्राफ. अगर बेटा मैं इसका VT ग्राफ बनाता हूं तो एवरीबॉडी वेरी क्लियरली सी इट. तो दिस इज v वेलोसिटी and this is time. मैं थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना रहा हूं, राइट, वेलोसिटी and this is time. तो यहां पर बड़े टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड सो ऑन, और वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And you can very clearly see that over here this is the equation of VT graph. और अगर बेटा ये VT ग्राफ की इक्वेशन है तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. जहां पर डिग्री कितनी होती है, यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, v वेरिएबल है और t वेरिएबल है, और दोनों की डिग्री कितनी है, 1 है ना. y एक्सिस के अंदर मैं v को रख रहा हूं और x एक्सिस के अंदर मैं t को रख रहा हूं. तो जैसे आप v = 2t है ना, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर v रख दिया और यहाँ पर t रख दिया. आपने 10th क्लास के अंदर कैसे ग्राफ बनाया, जैसे आपने ये ग्राफ तो बनाया हो ना, y = 2x, और y = 2x के ग्राफ के अंदर आप क्या होता था, यहाँ पर y होता था और यहाँ पर x होता था. तो यहाँ पर आप x और y की वैल्यूज को लेकर आप इसका ग्राफ बनाते थे 10th क्लास के अंदर. अब मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने y की जगह पर v लिख दिया और x की जगह पर t लिख दिया. तो आपको v = 2t का ग्राफ बनाना है और कुछ भी नहीं करना. क्लियर. तो अब बेटा इफ आई विल ड्रॉ, आई नो दैट एट t = 0 वेलोसिटी इज 0. एक ये पॉइंट आ गया. और t = 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, अगर आप t = 1 पुट करोगे यहाँ पर तो वेलोसिटी 2 है, तो 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है. तो ये पॉइंट आ गया. वैसे मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए, बट अगर आपको और कंफर्म करना है तो 2 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी होगी 4. वो भी आपने फाइंड आउट किया होगा. सिमिलरली 3 सेकंड्स, सिमिलरली 4 सेकंड्स. तो यहाँ पर बेटा अगर आप VT ग्राफ बनाओगे, इसका VT ग्राफ कुछ ऐसे करके बनता है, क्योंकि मेरे को बनाने तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो आगे मेरे को 2 पॉइंट्स दिए और मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये बेटा मेरे पास VT ग्राफ बन गया. बट किस पर्टिकुलर चीज का, इस पर्टिकुलर
बॉडी। After this beta, now I have drawn with AT graph, I have drawn with VT graph. Now I am going to draw its XT graph. थोड़ी सी मैं डार्क लाइन लगा रहा हूँ, लाइट हो गई थी लाइन। ये पीछे को ये नीचे को। तो दिस इज नाउ प्लस x, दिस इज माइनस x मीटर्स के अंदर, क्योंकि मैं ऐसा यूनिट्स के अंदर ले रहा हूँ, एंड दिस इज टाइम इज इन सेकंड्स के अंदर। तो अब बेटा अगर मैं यहाँ पर टाइम को मार्क कर देता हूँ, दैट इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। सिमिलरली यहाँ पर बेटा मैं पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13। थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। 17, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अब बेटा आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स एक्सटी ग्राफ, और मेरे को दिख रहा है कि मेरे को एक्सटी ग्राफ किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाना है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाना है, दैट इज x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो बेसिकली इफ यू नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। आपने छोटी क्लासेस के अंदर 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है एक वेरिएबल की, 2, ठीक है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो अगर बेटा आपको x इक्वल टू t स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट्स पर t की वैल्यू को 0 पुट किया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। t की वैल्यू को 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया, देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया। यहाँ पर t की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, जब मैंने वैल्यू की वैल्यू को 2 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 3 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। t को 4 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। तो इस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ किसके ऊपर, एक्स ग्राफ के ऊपर, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा जो आएगा दैट इज एट t इक्वल्स टू 0 x इज 0। तो सबसे पहला पॉइंट ये आ गया, t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, ये आ गया। अच्छा, अब उसके बाद t की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1 मीटर, तो बेटा ये पॉइंट आ गया। चलो बच्चे ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। अब आप बोलोगे सर यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा दो, नहीं भैया मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। इसके बाद 2 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी है, 4 है, तो यानी कि 2 सेकंड्स पर ये पॉइंट आ गया, देख रहे हो। और 3 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी है, 9। तो अब मैं 3 सेकंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जाऊंगा बेटा, तो 3 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये आ 9 आ गया। सिमिलरली 4 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आएगा बेटा मेरे पास, मैं ऐसे वर्टिकल लाइन ऊपर ले जाता हूँ पैरेलल, तो ये पॉइंट आ गया, राइट। तो अब इन सभी पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करने वाली कौन सी लाइन होगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप छोटी क्लासेस के अंदर ड्राइंग करते होते थे ना, आपको पॉइंट्स लगे होते थे, तो आपको पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता था। तो अगर बेटा मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, तो ये कुछ ऐसे करके ग्राफ बना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, राइट। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ xt ग्राफ, ये xt ग्राफ बना। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ पैराबोला। If I will write over here, this is a straight line
this is the equation of a straight line and this is the equation of a parabola. तो दिस इज xt ग्राफ. तो अगर थोड़ा सा मैं शेप आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, अगर ये x है और ये t है तो इसका पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से बनता है, राइट? एंड दिस इज अपवर्ड पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स, राइट बेटा? तो दिस इज द xt ग्राफ. तो एवरीबॉडी नोट इट डाउन. आप सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कीजिए. देखिए हाउ आई हैव ड्रॉन इट्स, इस पर्टिकुलर बॉडी का इसका AT ग्राफ को कैसे बनाया, VT ग्राफ को कैसे बनाया और XT ग्राफ को कैसे बनाया. तो यहां पर बेटा अगर आप सभी बच्चे ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर चीज में मैं क्या बोल रहा हूं, ये अभी हमने जो किया है दैट इज केस 1. मैं आपको इस तरह के 4 केसेस करवाऊंगा. आई विल मेक यू solve 4 cases and this particular question is case 1. This particular question is case 1. और case 1 क्या है? Where your acceleration is positive. Acceleration is positive. आप सभी बच्चे यहां पर देखिए कि यहां पर जो आपके पास acceleration है वो कितनी है? That is +2. Acceleration आपके पास पॉजिटिव है. एंड दूसरी बात आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? आप देखोगे पहले वेलोसिटी 0 थी पार्टिकल की, बट जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ, मोशन स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी और कौन से डायरेक्शन में बढ़ने लगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी. तो यानी कि मैं एक बात देखो, मेरे को यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी है जो वो पॉजिटिव ही है. 1 पर 2 है, 2 पर 4 है, 3 पर 6 है, तो उसके बाद आगे वाले टाइम्स पर तो और पॉजिटिव ही होगी और ज्यादा बड़ी ही वैल्यू होगी. तो मेरी वेलोसिटी भी क्या है यहां पर? पॉजिटिव है. तो अब सभी बच्चों ने एक बात का ध्यान रखना है. आई एम अगेन रिपीटिंग, जब आपके पास एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो उस पर्टिकुलर जगह पर आपका जो xt ग्राफ बनेगा उसका शेप कुछ इस तरीके से होगा. तो ये चीज सभी बच्चों को रिमेंबर करनी है. इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव, तो जो सा आपका xt ग्राफ बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस जो अभी हमने ड्रॉ किया यहां. आई होप सो सभी बच्चों ने अच्छे से इस चीज को नोट डाउन किया होगा, राइट? और इस तरीके के मैं 4 केसेस करूंगा, 4 केसेस आई विल डू. और यहां पर बेटा हम एक चीज को समझेंगे, यहां पर हो क्या रहा है? पहले गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है, फिर उसकी धीरे धीरे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई. जैसे आप अपनी गाड़ी को रेस देते हो, रेस देके वो चलने लग जाती है और उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है, स्पीडोमीटर के ऊपर स्पीड बढ़ने लग जाती है, तो वो तेजी से चलती है और हर सेकंड वो एक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपने पिछले डिस्टेंस ट्रेवल से. क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती वो इक्वल डिस्टेंसेस करती, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, राइट? बट अब तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो अब वो अनइक्वल डिस्टेंसेस करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे और वो एक ही डायरेक्शन में करेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है. एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, ये केस 1 किया है हमने. व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इट इज अबव द x एक्सिस, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी भी हर समय बॉडी की पॉजिटिव है. और जब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, तो उसका xt ग्राफ कुछ अपवर्ड पैराबोला बनेगा लाइक दिस. क्लियर? और यहां पर हम बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या लेकर चल रहे हैं? 0 कर रहे हैं. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला बोला का शेप होगा अगर ये केस हो. ठीक है, आई थिंक सो आपको ये केस 1 क्लियर है. तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. हम कौन से केसेस को डिस्कस करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम जो डिस्कस करेंगे सभी बच्चे ध्यान से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए. दैट इज केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4. एक बात सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो मैं एक्सेलरेशन लूंगा इन सभी केसेस के अंदर मैं एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट.
ठीक है, मैं सभी केसेस के अंदर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लूंगा, राइट। पहला केस जो हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव। दूसरा केस जो हम करेंगे, जो हम दूसरा केस करेंगे उसके अंदर हम वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। जो हम तीसरा केस करेंगे उसके अंदर हम वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे और एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव लेंगे। और जो हम चौथा केस करेंगे उसके अंदर हम वेलोसिटी को भी नेगेटिव लेंगे, वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। तो इन सभी केसेस के अंदर वी विल ड्रॉ देयर ET, VT एंड XT ग्राफ, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चे देख लीजिए जो हम केसेस को कवर करेंगे, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। और अभी हमने केस 1 सॉल्व किया, ये बात, दिस इज द केस 1 व्हिच वी हैव सॉल्व्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और सभी बच्चे देख सकते हैं कि इसका VT ग्राफ कैसे बना, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। और उसका XT ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, अपवर्ड पैराबोला। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने पहले केस 1 देखा था, दैट इज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो जब ये दोनों चीजें पॉजिटिव थी तो VT ग्राफ कुछ ऐसे बना था और XT ग्राफ हमारे पास पैराबोला बना था अपवर्ड्स। और इन सभी केसेस में हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो इन दो ग्राफ्स को सभी बच्चे शेप को याद रखेंगे। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव and velocity is also positive, the shape of VT graph is something like that and XT graph is something like that. Now we are coming to case 2 when velocity is positive and acceleration is negative, right? तो हमने लिखा case 2 that is velocity is positive and acceleration is negative. तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव के VT ग्राफ आपने लिख लिया, बना लिया आपने। तो बाद में मैं सभी ग्राफ्स को दोबारा से बना दूंगा, अभी हम केस 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अभी यहाँ पर ये सी गाड़ी है, ये इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर इट वाज एट 0 पोजीशन, यानी कि जब हमने टाइम को स्टार्ट किया मैंने उस पर्टिकुलर जगह पर मैंने 0 मान लिया। अब ये गाड़ी बेसिकली स्टेशनरी नहीं खड़ी है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, +10 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और इस गाड़ी की डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन के वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रही है और एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी है, वेलोसिटी के ऑपोजिट, और कितनी है, दैट इज -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो u की वैल्यू है मेरे पास +10 मीटर्स पर सेकंड और एक्सेलरेशन की वैल्यू है -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इधर ये बेसिकली किस तरीके का केस हुआ, आप देखोगे कि हमारे पास राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा ये बेसिकली किस पर्टिकुलर चीज का केस बना कि जब हमारे पास कुछ वेलोसिटी है, हमारी गाड़ी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर जा रही है, राइट, जैसे हम गाड़ी है, गाड़ी को हम लेकर जा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर स्पीड पर लेकर जा रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाना मतलब उसकी स्पीड को कम करना। अगर स्पीड को कम कर रहे हैं यानी कि हम उसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, है ना। तो मैंने पहले बताया था आपको, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो पॉजिटिव में बढ़े चाहे वो नेगेटिव में बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं। पिछले वाले केस के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, तो गाड़ी की स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, जैसे पहले 0 थी, फिर 2 थी, फिर 4 हो गया था। इस पर्टिकुलर केस के अंदर वेलोसिटी अगर राइट डायरेक्शन में है तो हमारे पास जो सी एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि पीछे को लग रही है।
अब यानी कि मैंने ब्रेक्स को लगाया, तो ब्रेक लगाने के कारण क्या होगा, मेरी गाड़ी की वेलोसिटी कम होगी। अगर वो इनिशियली 10 है तो वो 10 से कम होगी, पॉजिटिव में ही कम होगी ना। अगर मैं बोलूं कि 10 से वेलोसिटी हो गई 8, 10 से वेलोसिटी हो गई 8, सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुनो, मेरी पॉजिटिव 10 वेलोसिटी है और मेरी वेलोसिटी कम हो गई, कम होके +8 हो गई, तो है तो वेलोसिटी पॉजिटिव में ही ना, कम हुई है तो पॉजिटिव में। तो क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो गाड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगी जब तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, जिसके कारण वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या स्पीड की वैल्यूज की कम होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही होता है ना, जब हम गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, अगर वो 100 पर जा रही है और मैं उसको ब्रेक लगाता हूं तो वो कुछ डिस्टेंस मूव करती है, और डिस्टेंस मूव करके उसकी वेलोसिटी कम होती है, और कम होते होते फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। डन। तो ऐसी बेटा अब मैं यहां पर सबसे पहली मेरे पास एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो वेरी ही नहीं कर रही, और यहां पर मेरे पास एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव है, राइट। और अब यहां पर मेरे पास गाड़ी की इनिशियल स्पीड कितनी है, +10 मीटर्स पर सेकंड, दैट इज पॉजिटिव। तो अब बेटा अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की भी किसी भी टाइम पर, तो वेलोसिटी में कैसे निकालूंगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और यहां पर बेटा मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, दैट इज u इज 10, दैट इज पॉजिटिव 10, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -2, ये प्लस फॉर्मूले का लिखा, यहां पर मैं लिख दूंगा -2 इनटू t। और अगर बेटा मैं इस चीज को फर्दर सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 - 2t। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीटर्स पर सेकंड। तो v इज इक्वल टू 10 - 2t मीटर्स पर सेकंड मेरी वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम पर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर बेटा मैं डिफरेंट टाइम्स पर वेलोसिटी निकालता हूँ, t equals to v at t equals to 0 पर निकालता हूँ, तो यू कैन वेरी क्लियरली सी, यहाँ पर 0 पुट करूँगा, इट इज 10 मीटर्स पर सेकंड, और वैसे भी मेरे को पता है कि 0 सेकंड्स पर, यानी कि जब मेरी इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 है, तो ये बिल्कुल सही दे रहा है। सिमिलरली v at t equals to 1 सेकंड पर कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, सर 1 पुट करूँगा, दैट इज 8 मीटर्स पर सेकंड। इस यहाँ पर t की वैल्यू को 1 पुट कर दो। सिमिलरली v at t equals to 2 सेकंड्स पर कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू सर 6 मीटर्स पर सेकंड। कैसे 6 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पर 2 पुट करो, 2 to the 4, 10 - 4 is 6। v at t equals to 3 seconds, 3 to the 6, that is 4 meters per second। Similarly, v at t equals to 2 seconds, oh sorry, 4 seconds, it is 4, 8 with 2 meters per second। तो अब देखो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, हर सेकंड कितने से कम हो रही है, 2 से कम हो रही है। पिछले केस में 2 से बढ़ रही थी, इस केस में 2 से कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्टिव है, बट है तो पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो ये बेटा मेरे पास वेलोसिटीज आ गई हैं पार्टिकल की। डन। नेक्स्ट बेटा अब मैं इक्वेशन देखना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। तो अब बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो अब बेटा x किसके इक्वल आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10, t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज -2 इंटू टी स्क्वायर। और अगर बेटा इसको मैं फर्दर सॉल्व आउट करूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 10t, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -t स्क्वायर।
दिस विल बी माय इक्वेशन। तो अब अगर मैं बेटा x की वैल्यू निकालता हूँ t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर, तो 0 सेकंड पर कितनी आ जाएगी, दैट इज इसको 0 पुट किया 0 मीटर आ गया। x एट t इक्वल्स टू 1, वैसे भी मेरे को पता है कि 0 सेकंड पर गाड़ी 0 पोजीशन पर ही खड़ी है। अब t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर अगर मैं देखता हूँ तो ये 1 आ जाएगा, तो दिस विल बी 1, 10 into 1 1 and 1 10 minus 1 will be 9, it will be 9 meters। तो सिमिलरली अब मैं x is equal to 2 सेकंड्स पर देखता हूँ उसका पोजीशन कितना होगा, तो पोजीशन देखने के लिए मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा, तो ये 10 2 20 बन जाएगा और 20 माइनस 4, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, t स्क्वायर है ना, तो 2 2 4, तो 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली x is equal to 3 सेकंड्स पर उसका कितना आएगा, आई विल सी, तो यहाँ पर मैं 3 पुट करूँगा, दिस विल कम 30 माइनस 9, तो कितना पोजीशन उसका आ जाएगा, दैट इज 30 माइनस 9 इज 21 मीटर्स। उसके बाद x is equal to t equals to 4, तो 4 पुट करता हूँ, तो ये 4 पुट करूँगा, ये 40 हो जाएगा, माइनस 4 4 16, तो 40 माइनस 16 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 24 मीटर्स। और x is equal to t equals to 5 सेकंड्स पर अगर मैं देखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज 50 5 5 25, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर्स। तो अब बेटा आप सभी बच्चे एक बात को देखिए, क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी पॉजिटिव है, वो जाएगी तो राइट डायरेक्शन में, क्योंकि इनिशियली अगर वो 0 पर खड़ी थी, फिर आप देखोगे अगले ही सेकंड वो 9 पर चलेगी, फिर अगले सेकंड वो 16 पर चलेगी, फिर अगले सेकंड वो 21 पर चलेगी, बट हर सेकंड अब वो जो सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्योंकि पहले एक सेकंड में उसने कितना आगे गई, वो 9 मीटर्स आगे गई, उसके बाद वो कितना मीटर से डिस्टेंस आगे गई, कितना गई, मैं बोल देता हूँ दैट इज 16 माइनस 9 व्हिच विल बी इक्वल टू 7 मीटर्स आगे गई। फिर वो कितना आगे गई, अब देखो दैट इज 21 पर गई, दैट इज 21 माइनस 16 व्हिच इज वो 5 मीटर्स आगे गई। फिर वो कितना आगे गई, आप देखोगे ये 3 मीटर आएगा, फिर आप आगे देखोगे कितना मीटर गई, 1 मीटर आगे गई, पास में। तो अब तुम देखो हर सेकंड गाड़ी आगे को तो जा रही है, हर सेकंड गाड़ी आगे को तो जा रही है, बट वो आगे को कम डिस्टेंस आगे को जा रही है, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती जा रही है तो वो रुकती जा रही है। बात समझ में आ रही है बेटा, आप सभी बच्चे विजुअलाइज कर सकते हो। इससे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हर सेकंड उसका डिस्टेंस बढ़ रहा था, हर सेकंड वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पहले सेकंड के अंदर उसने 9 मीटर आगे गई, अगले सेकंड के अंदर वो 7 मीटर आगे गई। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड भी किया था ना हमने, तो कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर सेकंड उसका डिस्टेंस ट्रेवल कम होता जा रहा है, और कम होते होते वो गाड़ी वहीं पर ही रुक जाएगी, राइट, अगर एक्सेलरेशन हमारी सीज हो जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी, राइट। तो अब बेटा जो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ xt ग्राफ। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं यहां पर देखो, ये at की इक्वेशन आ गई which is independent of time, this is vt की इक्वेशन आ गई and this is xt की इक्वेशन आ गई, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग बेटा अब अगर मैं इसके ग्राफ्स को ड्रॉ करता हूं, सबसे पहले at के ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। at का ग्राफ बहुत ही सिंपल है, देखो ये क्या है मेरा टाइम एक्सेस, और यहां पर मैंने क्या रखा, एक्सेलरेशन को रखा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, टाइम को सेकंड्स के अंदर रखा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है ना, और एक्सेलरेशन की यूनिट कितने हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं हर के साथ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन हर टाइम पर कितनी रह रही है, एक्सेलरेशन हर टाइम पर -2 की रह रही है। तो 0 सेकंड्स पर भी -2 थी, 1 सेकंड पर भी -2 है, 2 सेकंड्स पर भी -2 है, 3 सेकंड्स पर भी -2 है। तो आप देखोगे ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो हर सेकंड उसकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। दिस विल बी माय स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज माय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आई होप सो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा हाउ आई हैव ड्रॉन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। तो इस चीज़ को बेटर ड्रॉ कर लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। सिमिलरली नेक्स्ट अभी हम ड्रॉ करेंगे वीटी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और वीटी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए देखिए बच्चे यहाँ पर ध्यान से,
मैं बेसिकली एक्सटी का ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीटी के ग्राफ को थोड़ा सा कम स्पेस के अंदर बनाना चाहूँगा ताकि एक्सटी ग्राफ के लिए हमारे को प्रॉपर जगह मिल जाए। ठीक है, तो मैं बीटी ग्राफ को थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ। हमने वाई एक्सिस के अंदर वेलोसिटी को रखा और एक्स एक्सिस के अंदर टाइम को रखा। तो टाइम की वैल्यू हम मार्कआउट कर रहे हैं, दैट इज सर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अच्छा, अब बेटा मैं वेलोसिटी के जो से डिविजन्स करूंगा। अब जैसे आप ग्राफ्स बनाते थे 10th क्लास के अंदर, तब ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बॉक्स को 1 1 1 ही लेना है। तो अगर यहाँ पर अगर ज्यादा वैल्यूज आ जाती है तो हमें एक बॉक्स का लेंथ, अगर लेट्स से 100 तक वैल्यू है तो हम एक बॉक्स को 10 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60, राइट। तो अगर मेरे को 100 तक जाना है और अगर लेट्स से मेरे को 1000 तक जाना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग में उस हिसाब से एक एक ब्लॉक को डिवीजन कर सकता था। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वेलोसिटी को बोल देता हूँ 2 मीटर्स पर सेकंड। तो ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। एंड सब कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर को और क्या आ जाएगा, दैट इज 12 2 4 6 8 10 12 मीटर्स पर सेकंड, ये वेलोसिटी की वो है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, आप सभी बच्चे देखें कि अब मेरे पास बेटा वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स पर कितनी है उसकी, यानी कि जब टाइम की वैल्यू 0 है, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी उसकी कितनी है 10। तो ये पॉइंट आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग जब उसकी, अब देखो ये मेरे को पता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मेरे को कितने पॉइंट्स चाहिए, आई नीड ओनली 2 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ कि 5 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी 0 है। तो ये t इक्वल्स 5 सेकंड्स आ गया, 5 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अब बेटा जो सा मेरे पास vt ग्राफ बना, दिस विल बी माय vt ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। सो तो यहाँ पर आप देखोगे कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, अभी मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि अभी ये मैं ऑन टू द स्केल नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ, रफली डायमेंशंस को ले रहा हूँ, राइट है ना, मैं रफली डायमेंशंस को ले रहा हूँ ना। तो इसलिए बेटा अब इसकी 0 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी 10 आ गई और अब 1 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज दिस 8। 2 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज दिस, दैट इज 6। 3 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज दिस 4। और 4 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज दिस 2 मीटर्स पर सेकंड। एंड सिमिलरली 5 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा अभी ये 2D स्केल नहीं बने। अब आपको भी सर ये 2 देखो, ये 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो सर ये तो डिस्टेंस इक्वल ही नहीं आ रहा है सर। ठीक है, तो अगर आप 2D स्केल बनाओगे, ठीक है, तो अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे एक्जेक्टली ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा इक्वल डिविजन्स के साथ। ठीक है, और ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके आएगी, ये vt ग्राफ बनता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपके पास vt ग्राफ बनेगा। देन clear, okay, now we are going to draw its xt graph। तो xt ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो अभी बेटा मेरे पास, मैं कहाँ तक जाना है, मेरे को 25 मीटर्स तक जाना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, लेट्स से 5 10 15 20 25 20 25 and corresponding this is 30, this is in meters and this time is in seconds। तो अब बच्चे, सभी बच्चे देखें, तो x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 पर इसका x का वैल्यू कितना है, 0। तो यानी कि मेरे पास कौन सा पॉइंट आया, दिस इज दिस पॉइंट। t इक्वल्स टू 0 पर x भी 0 है। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर x की वैल्यू कितनी है, 9। तो 1 सेकंड पर अगर यहाँ पर 5 है, 6 7 8 9, ठीक है, तो इसको अगर मैं इक्वली डिवाइड कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है,
तो अभी बेटा मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं अंदाजे से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो अगर यहाँ पर 5 है, 6 7 8 9 9 कुछ यहाँ पर होगा, है ना। तो 1 सेकंड पर इसका पोजीशन कितना आ रहा है, दैट इज 9। दिस इज द पॉइंट। तो 0 पर ये है और यहाँ पर ये पॉइंट है। इसके बाद 2 सेकंड्स पर इसका पोजीशन कितना है, 16। तो अब सभी बच्चे देख सकते हैं अगर 15 यहाँ पर है तो 16 कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 2 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका पॉइंट ये आ, करेक्ट। इसके बाद 3 सेकंड्स पर इसका पोजीशन कितना है, 21। तो 20 15 16 और 21, तो 3 सेकंड्स पर तो 21 कुछ यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट आ गया। 4 सेकंड्स पर इसका पोजीशन कितना है, दैट इज 24। तो ये 21 है, 22 है, 23 है, ये 24 है, ठीक है। तो 4 सेकंड्स पर इसका पोजीशन कितना आ रहा है, 24। दिस इज द पॉइंट। सिमिलरली 5 सेकंड्स पर इसका पोजीशन कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो यानी कि एग्जैक्टली ये यहां पर आ रहा है। ये पॉइंट आ रहा है। तो अब बच्चे अगर मैं इसको, अब ये देखो, अगर मैं अब इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं ताकि आप सभी को ध्यान से दिखाई दे। इसको कुछ इस तरीके से, ये ऐसे करके ग्राफ, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। This is not a straight line. This is a parabola facing rightwards. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, this is a straight line. Acceleration का straight line आया, इसका भी straight line आया, and this is parabola आया, facing rightwards. तो अब बेटा हमने ड्रॉ किया, किसको ड्रॉ किया, हमने AT, VT और XT ग्राफ को ड्रॉ किया जब हमारे पास वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, राइट। और हम इनिशियल पोजीशन को 0 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे, अब मेरे को क्या पता चला कि जब बेटा हम एक, अब याद चीज रखेंगे, केस 2 के अंदर जब भी मेरे पास केस 2 होगा, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो क्या होगा, उसका वीटी ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, कुछ वीटी ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। वेलोसिटी कम होगी, तो सभी बच्चे देख सकते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव थी और पॉजिटिव में ही कम हो रही है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन इज -2 और वेलोसिटी कम हो। और इसका बेटा जो सा एक्सटी ग्राफ का शेप होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये x है और ये t है, और शेप कैसा बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, पैराबोला। पहले केस के अंदर अपवर्ड पैराबोला बना था जब वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव थी, और यहाँ पर ऐसे करके बनेगा पैराबोला समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, राइट। हाँ जी बेटा, तो राइट नाउ बेटा आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने आपको बताया कि अभी हमने ग्राफ्स को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। कौन से केसेस के अंदर, जहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, वेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अब बेटा हम एक्सेलरेशन के साथ 4 केसेस को डिस्कस करेंगे, xt, vt और at ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर हमने ये पहले 2 केसेस को डिस्कस किया, आप देख सकते हो ऑल द 4 केसेस जो भी मैंने आपको बता दिए। आज के लेक्चर के अंदर हमने एक केस 1 डिस्कस किया है, इसका एक क्वेश्चन देखा है, और एक केस 2 डिस्कस किया है, इसका क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर 16 के अंदर हम इन 2 केसेस को देखेंगे,
राइट, उनको ड्रॉ करना सीखेंगे। तो हमने क्या देखा कि जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वहां पर हमारे पास जो सा वीटी ग्राफ का शेप है, वीटी ग्राफ का जो सा शेप है दैट इज समथिंग लाइक दिस, और जो एक्सटी ग्राफ का शेप है दिस इज 0। दैट इज समथिंग लाइक दिस, अपवर्ड पैराबोला, ये भी हमने ड्रॉ किया। एंड सिमिलरली केस 2 के अंदर जहां पर हमारे पास एक्स वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव के अंदर है और एक्सेलरेशन नेगेटिव के अंदर है, तो अब बेटा यहां पर हमारा वेलोसिटी की वैल्यू कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी से डिक्रीज होगी और टुवर्ड्स 0 आएगी। तो यहाँ की वेलोसिटी डिक्रीज होगी और यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, बट है पॉजिटिव ही, है वेलोसिटी पॉजिटिव ही, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर है। और यहाँ पर बेटा जो हमारा एक्सटी ग्राफ का शेप बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज t, this is also parabola but it will be facing rightwards, something like this। अगर मैं क्लियरली आपको मेंशन करके दिखाऊं it will be something like this, ठीक है। तो ये केस में और इस केस में कैसे बनेगा वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और अगर बेटा मैं इसका एटी ग्राफ बनाता हूं, एटी ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज a and this is t and this is 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो थोड़ा सा मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस विल बी द एटी ग्राफ। और यहाँ पर a t और दिस इज 0 और जो सा मेरा एटी ग्राफ बनेगा दैट विल बी द बिलो x एक्सिस, दैट इज टाइम एक्सिस। तो बेटा इन ग्राफ्स को हमने कैसे ड्रॉ किया, मैंने एक एक पॉइंट लेकर आपको बताया, एक एक पॉइंट लेकर हमने उसको पॉइंट्स को ड्रॉ किया और उसका पर्टिकुलर शेप को देखा। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर आपको इन चीजों को मेमोराइज करना है, ठीक है, इन ग्राफ्स की शेप को मेमोराइज करना है। हमने इसको कैसे बनाया है इसको ध्यान से देखना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी ह्यूज कंसेप्ट, ठीक है, इजी है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। ये 1 घंटा, ठीक है, आपको काफी कुछ आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके माइंड की अपॉर्चुनिटीज, आपके माइंड के होल्स को ओपन करेगा, राइट। तो अभी बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग, अब आप बोलोगे सर हमारा आज के लेक्चर का हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग क्या है। क्वेश्चन सॉल्विंग बेटा आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चन सॉल्व करके ही सोना है, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चंस के जो मैंने कंसेप्ट्स करवा दिए हैं, जैसे वीटी ग्राफ में कहीं अगर लेट से आप एलडीए खोलते हो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पर वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा होगा या किसी में वो वेलोसिटी पूछ रहा होगा, तो आप वहां पर वो पर्टिकुलर कंसेप्ट जो मैंने ग्राफ के करवा दिए वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज जब मैं साथ साथ में भी सॉल्व करवा रहा हूं आपका लेवल अपने आप ही बढ़ता जाएगा, फिर आप साथ साथ के साथ सॉल्व करते जाना उन चीजों को, राइट। तो बेटा ग्राफ्स करना जरूरी काइनेमेटिक्स के अंदर आपको कंपटीशन के लिए है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ्स आते हैं तो कंपटीशन के लिए आपको सॉल्विंग आसान हो जाएगी आपके लिए, राइट। विदाउट ग्राफ भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट विद ग्राफ अगर लेट से विदाउट ग्राफ हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेट से 10 मिनट्स के अंदर, तो ग्राफ अगर हमारे को आता होगा माइट भी हम उसको 2 मिनट के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ्स, ठीक है बेटा। तो आपको ये सभी ग्राफ्स अच्छे से देखिए, इनको मेमोराइज कीजिए, ठीक है। और आप सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हाँ भी भैया पढ़ाई हो जाएगी, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज कॉन्फिडेंस, ठीक है। पहले क्वेश्चंस नहीं होते सॉल्व, किसी से नहीं सॉल्व होते, मेरे से भी सॉल्व नहीं होते थे। जब मैंने उसको मन में बिठा लिया कि हाँ भी मेरे को करना ही करना है, ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो ना। मुश्किल क्वेश्चन को मत पकड़ो, आसान क्वेश्चंस को पकड़ो, उनको खत्म करो। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को उठाओ बेसिक बुक में से, बेसिक ऑब्जेक्टिव बुक में से, उसको खत्म करो। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता जाएगा। और वो तभी होगा बेटा अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ और विद प्रैक्टिस आप सॉल्विंग करोगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस नहीं काम चलेगा। तो आई एम अगेन रिपीटिंग इन होल वीडियो लेक्चर, ठीक है, मैं बार बार यही बात को बोलता हूं बेटा कि अपना
सॉल्विंग जरूर करो काइनेमेटिक्स की, बहुत जरूरी है। कोई टीचर जितना मर्जी अच्छा क्यों ना पढ़ाता हूं, मैं कहूंगा कि मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं, वो कह सकते कि हमें प्रैक्टिस मत करो, मेरी लेक्चर देख लोगे तो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कभी जिंदगी में ही नहीं हो सकता, राइट? तो आपको बेटा काइनेमेटिक्स के जितना तुम प्रैक्टिस से सीखोगे उतना कभी भी तुम वीडियो लेक्चर को देख के नहीं सीखोगे। वीडियो लेक्चर को देख के तुम सिर्फ कंसेप्ट्स को सीखोगे, और वंस यू हैव गॉट द कंसेप्ट्स यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब आप गलतियां मत करो, जो इंक्रीज योर स्पीड, कि आप उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है हमारे एग्जाम के अंदर। बात समझ रहे हो ना? तो हमारे को सिर्फ एक्यूरेसी नहीं लेकर आनी या एफिशिएंसी नहीं बढ़ानी, हमारे को स्पीड भी बढ़ानी है साथ में। तो स्पीड हम बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बट अभी आपकी स्पीड कैसे, आपको अभी एक्यूरेसी के ऊपर वर्कआउट करना है, आपको अभी कंसेप्ट्स के ऊपर वर्कआउट करना है। वंस योर कंसेप्ट्स एंड एक्यूरेसी इज ओके, आप कैलकुलेशंस के अंदर गलती नहीं कर रहे हो, बात समझ रहे हो ना? स्पीड बढ़ाने में चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, दैट इज आल्सो रॉन्ग। अभी आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट्स को एब्जॉर्ब करना है, कंसेप्ट्स को एब्जॉर्ब करके उन क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है। और सॉल्विंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप कंसेप्ट सही लगा रहे हो। पहला पॉइंट क्या है, आप क्या लगा रहे हो, कंसेप्ट सही लगा रहे हो। और अगर आप कंसेप्ट सही लगा रहे हो, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा कि आप उसकी सॉल्विंग सही कर रहे हो। ठीक है, सॉल्विंग आपको एक्यूरेसी देगी, ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी सॉल्विंग होगी, ठीक है, तो अब सॉल्विंग के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक बार आपको कंसेप्ट लगाना आ गया, फिर आपको सॉल्विंग करना आ गया, फिर उसके बाद हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बात समझ रहे हो ना? तो पहले आपको कंसेप्ट्स देखने के, हाँ आपको ये पता चलता है कि कौन सी इक्वेशन लगानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, या आपको इक्वेशन ही नहीं पता चलती, कई बार बच्चों को या मेरे को भी नहीं पता चलती थी कि भैया कौन सी इक्वेशन लगानी, किस टाइम पर कौन सी इक्वेशन लगानी, पता ही नहीं चलता था। होता है, क्वेश्चंस के अंदर होगा, क्वेश्चंस मुश्किल हैं, मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल। एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के कर लोगे, अगली बार आएगा तो तुम्हारी मुश्किल नहीं आएगी। बात समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट लगना चाहिए कि हाँ भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप सही कंसेप्ट लगाते हो, चाहे आप जितना मर्जी टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 घंटा लगा दो एक क्वेश्चन के ऊपर, बट उस 1 घंटे में इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि अगले क्वेश्चन, अगला सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आपका वो 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, अगर फिर से दोबारा सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करें। सिमिलरली एक बार आपको कंसेप्ट सही लगाने आगे, फिर आप देखोगे कि आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपकी इक्वेशंस के अंदर गलती ना हो। सॉल्विंग करते समय बच्चे 5+2 को ही गलत लिख देते हैं, जल्दबाजी में पीछे रफ वर्क करते हैं तो आगे लिखते हुए आंसर को गलत कर देते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स को, सॉल्विंग को सही करना है। और एक बार ये दोनों चीजें हो गई स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको स्पीड को इंक्रीज करना है। और स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करोगे, राइट? तो आई एम अगेन रिपीटिंग कि सभी बच्चे काइनेमेटिक्स को बड़ा सीरियसली लें, ठीक है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। पहला चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स है, अगर ये आपका स्ट्रेंथ बन गया, ठीक है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम्हारा माइंड ओपन हो गया, और माइंड ओपन हो गया आप कुछ भी करो, राइट? टेक योर डाउट्स, चुप नहीं बैठना किसी में। अगर आपको डाउट आता है तो बोलना है। 3 इडियट्स का डायलॉग देखा है ना कि भैया बिना बोले तो, बिना रोए तो बच्चे, अगर बच्चा रोए ना तो उसकी माँ को भी नहीं पता चलता कि उसको भूख लगी या नहीं लगी। बात समझ रहे हो? तो बेटा आपको बोलना है, जहां पर नहीं समझ में ऑन द टाइम बोलना है। अब ऐसा तो नहीं होता कि आपको सुबह भूख लगी और तुम रात को रो रहे हो, नहीं, जब तुम्हें भूख लगती है तुम तभी रोते हो। छोटे बच्चा तभी रोता है, आप नहीं रोते, वो छोटा बच्चा रोता है, राइट? तो इसलिए बेटा इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट या कुछ भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है सॉल्विंग के अंदर या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, यू वांट टू टेक माय हेल्प, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑन टाइम, राइट? एंड बेटा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ठीक है, खुश रहो, नींद प्रॉपर करो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बॉडी को, अगर आपका फिट होगी तभी आप पढ़ाई की तरफ लगा पाओगे, राइट? सो एवरीवन बेटा, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, and we will meet in the next lecture. Thank you beta so much.